Hello friends, today we will do the second chapter in your book Beehive. This book Beehive, the second chapter, and today we are doing the poem. It's a wonderful poem. The name of the poem is Wind, and this poem which is written by Subramania Bharati. Now Subramania Bharati was the Tamil writer, and it's, he was famous for his poetry in the pre-independence era, and this A.K. Ramanujam translated this poem. It's a Tamil poem, and Ramanujam translated this poem in English. So we are studying the English part of this poem, Wind. Now, first of all, let us understand what is the title. What is the meaning of wind? Now, how would you define wind? Is there any difference between wind and air? Is air different from wind? Now, how would you make a difference in air and wind? You can say air. We live in air. It is the combination of so many gases: oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. So this atmosphere, it contains this air, and when this air started moving in a particular direction, then you call it a wind. There are many synonyms of wind, but the most common synonym of wind is breeze. Now, what writer wants to tell in this poem, Wind? The wind blows strongly and cause a lot of destruction. How can we make friends with it? How can we make friends with it? There is a question mark. Now, the wind blows strongly, causes a lot of destruction. We have seen the destruction of wind in the form of cyclones, in the form of hurricanes, in the form of great storms, and we all know the various catastrophes our world faced because of wind. So wind is very destructive. Then there is a question mark in the next line. How can we make friends with it? So the writer first is describing wind and all its phenomena, how this wind is destructive for so many things, and later he also tells that can we give up all the hopes when the wind is destroying? Writer is saying no. Is there any way to combat the wind? Yes, there is a way. And what is that way? Writer is saying that if you develop animosity with the wind, then wind is your worst enemy. But if you become friend with the wind, then wind helps you to become stronger, because wind finds a strong person, a strong house, a thing full of strength, compatible for its friendship. तो जो विंड की दोस्ती है वो बहुत ऊंची दोस्ती है. आप ताकतवर हैं तो विंड आपके दोस्त है, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो विंड आपको और कमज़ोर बना देगी. लेट अस रीड इट. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Now first understand, writer is starting wind. Now this wind is as if you are calling someone. For example, if your name is Sid, I would say Sid. For your if your name is Sania, I would say Sania. So I am calling. Wind, come softly. Writer is requesting. He is not threatening, because there is no way to threaten
a strong person. Wind, come softly, not swiftly, softly. Don't break the shutters of the windows. Don't break the shutters of the windows. आपने देखा ना, जब बहुत तेज आंधी आती है तो खिड़कियां जो होती है उसके शटर्स किस तरह से खुल जाते हैं, और बहुत तेज होती है तो टूट जाते हैं. डोंट स्कैटर द पेपर्स. अगर आपके कमरे की खिड़कियां खुली हुई है तो वो जो पेपर्स होते हैं, डोंट स्कैटर द पेपर्स, वो हवा में उड़ जाते हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. ना केवल इतना बल्कि जो आपकी किताबें हैं वो भी गिर जाती हैं. तो जो विंड है, विंड किस तरह से नुकसान करती है, विंड किस तरह से आपको परेशान करती है. नाउ इफ यू सी द सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, हियर यू वुड फाइंड डोंट, डोंट, डोंट. 3 times don't. Now 3 times don't, when a line is start with a single word and it's continuous in all the lines, then it's a poetic device. Anaphora. Anaphora. Here don't, 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 anaphora. And wind, come softly. Now it is personifying the wind, as if wind is a living thing. So what is personification? To give the quality of a personality, persona. तो वो जो personification है वो किस वर्ड से बना है? वो बना है persona. persona वैसे बहुत पुराना वर्ड है. तो ग्रीक और जो रोम थिएटर्स होते थे, दे वर वेरी फेमस फॉर देयर ड्रामा. और पर्सोना क्या होता था? एक मुखौटा होता था, मास्क, वो लोग लगाते थे और उसमें से आवाज़ आती थी. सो जब हम पर्सोनिफाई किसी चीज़ को करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो पर्सन हो गया, एक लिविंग बीइंग हो गया. सो राइटर इज आस्किंग द विंड, रिक्वेस्टिंग द विंड टू कम सॉफ्टली, एंड प्लीज डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. शटर्स ऑफ द विंडोज, scatter the paper and throw down the books on the shelf. This is what wind is doing. Now in the next line, there, look what you did. जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं ना कि देखो बेटा तुमने क्या किया. What you did, तुमने तेज बह के क्या किया. You threw them all down, तुमने इन सबको फैला दिया, गिरा दिया. किसको? पेपर्स को, बुक्स को. और नेक्स्ट लाइन में राइटर ने कहा है यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. टोर, फाड़ देना. बहुत तेज हवा चलती है तो बुक्स के पेजेस भी फट जाते हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन. आंधी आती है तो उसके साथ तूफान आता है, फिर बारिश होती है. यू ब्रॉट रेन अगेन. रेन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन विंड तूफान के फॉर्म के अंदर हैवी रेन्स भी, स्टॉर्म भी, हिल स्टॉर्म भी लेके आती है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग. व्हाट आर वीकलिंग्स? वीकलिंग्स जो कमज़ोर होते हैं. वीक वर्ड से बना है वीकलिंग्स. तो वीकलिंग्स इज अ नाउन, जो कमज़ोर लोग हैं. पोकिंग फन, मेकिंग फन, कि तुम देखो कमज़ोर का कैसे मजाक उड़ाती हो. यू आर वेरी क्लेवर, आंधी. यू आर वेरी क्लेवर, बहुत चालाक हो तुम. एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग, जो कमज़ोर हैं उनका मजाक उड़ाने में. आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ तूफान आता है तो सबसे पहले क्या टूटता है? जो कच्चे मकान होते हैं, झोपड़ी होती है. और जो लोग जिसको बोलते हैं ना, जैसे उसमें बहुत गरीबी में रहते हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी जिसको हम बोलते हैं. तो विंड क्या करती है? यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स. तो यहाँ पे कमज़ोर का तुम किस तरह से मजाक बनाती हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. देखो अब राइटर अलग अलग तरह से बता रहा है. फ्रेल, वीक, क्रम्बलिंग हाउसेस.
जो कमज़ोर घर होते हैं उनको तुम तोड़ देते हो। तो आपने देखा होगा जब भी बहुत आंधी आती है तो हम आपके हमारे घर नहीं गिरते हैं। कभी आंधी में आपने देखा कि आपके घर गिर गए, लेकिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि एक कच्चा मकान गिर गया, उसमें लोग दब गए। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, विंड क्या करती है, सबसे बड़ा अपना असर किनके ऊपर दिखाती है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। क्रम्बलिंग मीन्स जो कमज़ोर हो जाते हैं, गिरने वाले होते हैं, टूटने वाले होते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, वही कमज़ोर दरवाजे जो होते हैं वो बहुत तेज आंधी से टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, यू नो व्हाट आर राफ्टर्स? क्रम्बलिंग राफ्टर्स, वो जो छत होती है ना मकान की, ऐसे जिससे सीलिंग बनती है, इस तरह से, दैट इज राफ्टर्स। सो क्रम्बलिंग वुड, दरवाजे हो सकते हैं लकड़ी के, लकड़ी का फर्नीचर हो सकता है। अगर वो कमज़ोर है तो बहुत तेज़ हवा में वो टिक नहीं पाएगा। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और अगर इंसान भी कमज़ोर है तो वो बहुत तेज़ हवा में टिक नहीं पाएगा, उसकी बॉडी को भी नुकसान होगा। और ऐसा होता है, अगर हम वीक होते हैं, हमारी बॉडीज़ वीक होती है तो हम बीमार जल्दी होते हैं। अभी कहते हैं ना कि आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो, अदरवाइज़ कोरोना हो जाता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो चाहे दुनिया में कितना भी कोरोना फैला है, पर वो आप पे आ भी गया तो आप पे अफेक्ट नहीं करेगा। सो यू हैव टू मेक योर बॉडीज स्ट्रॉन्ग, बट विंड इज मेकिंग द क्रम्बलिंग बॉडीज वीकर देन बिफोर। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो कमज़ोर जीवन है, हम सुनते हैं जैसे इसको, आप कौन सा जीवन कमज़ोर होता है, किन की लाइफ जो होती है वो कमज़ोर होती है, पुअर लाइफ जो होती है। अभी जब हमने देखा कि लॉकडाउन होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? हम घर में बैठते हैं, हमको नहीं होती है, लेकिन जो माइग्रेंट्स होते हैं, वो जो बहुत दूर से शहर में काम करने के लिए आते हैं, 100 रुपया 200 रुपया जो रोज़ कमा लेते हैं, उनकी लाइफ शैटर हो गई। तो इस तरह के जो भी नेचुरल कैटास्ट्रॉफी आती है उसका सबसे पहला असर किनके पे होता है? उन लोगों पे होता है जिनकी लाइफ ऑलरेडी क्रम्बल्ड है, और वो क्रम्बल्ड लाइफ और ज़्यादा वीक हो जाती है। कब क्यों हो जाती है? क्योंकि वो इतने वीक होते हैं और उस डिजास्टर को वो सहन नहीं कर पाते हैं, राइट? क्रम्बलिंग हार्ट्स, और हार्ट्स का मतलब ये धड़कने वाला जो दिल है ये नहीं, हार्ट्स का मतलब होता है इमोशंस। बिकॉज व्हेन एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, यू आर नॉट डिस्ट्रॉयड फिजिकली बट यू आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इमोशनली। आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आप एंग्शियस हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपका एंगर लेवल बढ़ जाता है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस लेवल आपका कम हो जाता है। सो अब यहाँ पे आप देखिए कि इस 3 लाइन में एक वर्ड है क्रम्बलिंग। जब कोई वर्ड रिपीट होता है देन दैट पोएटिक डिवाइस इज नोन एज रेपिटेशन। सो यहाँ पे आई अगेन रीड, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, and last crumbling hearts. Now next line में राइटर ने विंड को कंपेयर किया है गॉड से। देखो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे हर माइथोलॉजी में जितने भी नेचुरल फोर्सेस होते हैं उनको हमने गॉड से कंपेयर किया है। तो जैसे सन है तो हम बोलते हैं सन गॉड, उसी तरीके से विंड गॉड। अभी हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी तो विंड गॉड है, लाइक पवन पुत्र हनुमान,
हनुमान इज द सन ऑफ पवन. पवन मीन्स विंड, विंड गॉड. तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी है. आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ द विंड गॉड इन दैट माइथोलॉजी. सो हर माइथोलॉजी के अंदर जितने भी नेचुरल फोर्सेस होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिन पे ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं हो पाता है, उनको हम गॉडली पावर दे देते हैं, राइट. और जब हम किसी को गॉडली पावर देते हैं तो हम उसको प्रेज करते हैं दैट यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर दिस, यू आर दैट. और हम वीक है, तुम हमारे पे कंपैशन रखो. सो यहाँ पे राइटर नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं द विंड गॉड. नाउ the wind god winnows and crushes them all. Now this is beautiful word, winnows. तो सबसे पहले तो देखो the wind god, wind and winnows, तो दो साउंड आया. This poetic device is known as alliteration. Now this alliteration, जब सेम साउंडिंग कॉन्सोनेंट आपके लाइन के अंदर में रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे W और W. नाउ द विंड गॉड विनोस. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज विनोस. देयर इज अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं विनोइंग. आपने देखा होगा गांव में जो किसान होते हैं, जैसे गेहूं है तो वो ऊपर छालनी को ऐसे रख के उसको बहुत, जब हवा चलती है तो उसको हिलाते हैं, जिससे जो वीट होता है, जो ग्रेन्स होती है, दे विल फॉल, सेटल ऑन द अर्थ. और जो कचरा होता है वो उड़ जाता है, चला जाता है, क्योंकि जब गेहूं आता है तो उसमें ग्रेन्स के साथ में कचरा भी होता है. नाउ वी डोंट नीड दैट कचरा, वी हैव टू सेपरेट द कचरा. वो कचरा क्या है? वो जो हल्का होता है, जो भारी नहीं होता है, जो वीक होता है. तो जब हवा चलती है तो भारी चीज़ तो नीचे गिर जाती है और वो जो कचरा होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है. तो यहाँ पे राइटर यही बोल रहा है कि अगर आप वीक हो, अगर आप फ्रेजाइल हो, अगर आपकी बॉडी क्रम्पलिंग है, तो विंड गॉड आपको विनोस थ्रू द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, छान के जैसे वो हवा कचरे को अलग कर देती है, वैसे जो वीक है उसको राइटर ने यहाँ पे उसी के साथ कंपेयर किया है, वो आपको अलग कर देगी. क्रशेस देम ऑल, मकान खत्म हो जाते हैं, लाइफ्स खत्म हो जाती है. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. ही, नाउ अगेन पर्सोनिफिकेशन. ही हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसके लिए यूज करते हैं? हम ही यूज करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए, लिविंग मैस्कुलिन जेंडर, नॉट इवन एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. और शी हम यूज करते हैं फीमेल जेंडर के लिए. लेकिन हम ही और शी इसके अलावा किसी के लिए यूज नहीं कर सकते. हम ये नहीं बोल सकते कि ही इज अ बुक, हम बोलेंगे इट इज अ बुक. बाकी सब न्यूट्रल जेंडर होते हैं. बट अगर मैं इसको इट इज़ द बुक की जगह शी इज़ अ बुक बोलता हूँ, तो मैंने इस बुक को इंसानों वाली क्वालिटी दे दी, पर्सोनिफाई कर दिया. सो दैट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. सो ही एंड हिम इज टेलिंग यू. सो यू अंडरस्टैंड, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. विंड इज नॉट गोइंग टू डू, विंड इज नॉट गोइंग टू टेक योर कमांड्स. आप उसको क्या बोलते हो विंड्स को, वो आपकी बात को विंड बिल्कुल नहीं मानेंगी. सो कम. तो अब राइटर किसको बोल रहा है? अब विंड का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो राइटर आप ही से रिक्वेस्ट कर रहा है. राइटर क्या बोलता है, पोएट क्या बोलता है? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. चलो आओ हम बहुत मजबूत घर बनाएं. हाउसेस नहीं लिखा, देखो होम. इसका मतलब वो जो बिल्डिंग है ना केवल वो मजबूत हो, जो हमारी फैमिली है वो भी स्ट्रांग हो, उसके टाइज भी स्ट्रांग हो, उसकी हेल्थ भी स्ट्रांग हो. सो अगर आपको विंड का मुकाबला करना है तो आप उससे लड़के नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्लेवर बनना पड़ेगा, हमें विंड से दोस्ती करनी पड़ेगी. सो कहते हैं ना,
एक कहावत है, जब दुश्मन ताकतवर हो जाए तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, समझे? तो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, बड़े मजबूत हम घर बनाएं. लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. ना केवल मजबूत दरवाजे हों बल्कि उनको हम मजबूती के साथ बंद कर सकें. अगर आपने दरवाजे बंद कर लिए तो आपके कमरे में विंड नहीं आएगी. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. कहते हैं ना, बहुत जैसे दुबला पतला है तो बोलते हैं ना कि अरे कुछ खाया कर, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा, है ना. सो लेट्स फर्म, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसे भी हम मजबूत बनाएं. मेक द हार्ट स्टेट फास्ट. नाउ मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, स्टिल, डिटरमाइंड, राइट. दिल को भी हम मजबूत बनाएं. ऐसा नहीं कि कमज़ोर दिल हो तो जल्दी टूट जाता है, राइट. तो हमें ना केवल विंड से बचना है, तो हमें ना केवल अपने घरों को मजबूत बनाना है, उनके दरवाज़ों को मजबूती से हमें बंद करना है, और हमें अपनी बॉडी को, हमें अपनी फिज़िक को, हमें अपने शरीर को भी मजबूत बनाना है. ना केवल हमें अपने बॉडी को, मेक द हार्ट. यहाँ जब भी हार्ट की बात आती है तो ये धड़कने वाला दिल नहीं, इसको हम मेटाफोरिकल सेंस में लेंगे, हमारी मेंटल स्टेट. तो वो जो हमारा इमोशंस हैं वो भी स्ट्रांग होने चाहिए. डू दिस, एंड राइटर इज सेइंग डू दिस, बट ही इज नॉट सेइंग इफ, बट हियर ही मीन्स टू से इफ यू डू दिस, अगर आप ऐसा करते हो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. विंड विल, वंस अगेन अलिटरेशन, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. और अगर हम मजबूत हो जाते हैं तो फिर विंड हमारी दोस्त हो जाती है, फिर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. अब समझो, एक मोमबत्ती की छोटी सी लौ है, हवा का एक झोंका आएगा तो इट वुड ब्लो इट ऑफ, उसको बुझा देगी, है ना. वो जो फायर है, अगर बहुत कमज़ोर फायर है, बहुत वीक फायर है, तो एक हवा का तेज झोंका उस आग को बुझा देगा, राइट. लेकिन ही मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. लेकिन अगर आग बहुत तेज है तो वो उसको और तेज कर देगी, राइट. अगर फायर स्ट्रॉन्ग है, जैसे जंगलों में जब आग लग जाती है तो कितने किलोमीटर तक आग फैल जाती है, आप उसको बुझा ही नहीं सकते. हमने लास्ट ईयर देखा था ऑस्ट्रेलिया में कि किस तरह से वहाँ जंगल जल गए और करोड़ों अरबों, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एनिमल्स दे डाइड. तो वो जो फायर है, उस फायर की स्ट्रेंथ इतनी है कि ऑस्ट्रेलिया के कितने जंगल को जला दिया, कितने मिलियंस एनिमल्स जो हैं वो मर गए. दैट इज़ द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग फायर. और ये स्ट्रॉन्ग फायर कैसे फैली थी? अगर फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो जो आंधी है वो उसको और फैला देगी. सो वंस अगेन आई रीड, द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर. मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल याद रखना. ही मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश. वंस अगेन ही मीन्स विंड, personification. रोर. नाउ रोर, ही मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स. वो जो मजबूत फायर्स है, रोर. रोर का मतलब होता है इट्स अ साउंड ऑफ लॉयन. तो हम बोलते हैं ना, द रोरिंग ऑफ द ओशन. तो वो रोर इज एन लॉयन एंड इट्स साउंड आर एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ. एंड फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब होता है बढ़ाना, ग्रो. सो लास्ट में राइटर ने कहा है हिज फ्रेंडशिप इज गुड. ओनली हिज फ्रेंडशिप
The friendship is good. There is no way you can survive the animosity, दुश्मनी जिसको हम बोलते हैं. विंड से दुश्मनी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता. हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, टू मेक फ्रेंड्स ऑफ विंड. वी प्रेज हिम एवरी डे. We praise him every day, and because it is so powerful, we should praise him like the way we praise God. And wind will always be our friend. Thank you.